Hello viewers, welcome to VMesh. I am Refia Wiquar. Thank you for showing your love and affection to all our previous videos. Your views, your feedbacks are very essential for us. Please keep on guiding because they in turn are going to help us out with the future videos. So now that we have completed a significant portion of OB, today I am going to start off with something interesting. I will be starting off with a topic in the name of learning. Now let us start off with it. सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है. It is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of prior education, training, practice and experience. It must be reinforced and it must be reflected in behavior. तो आइए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. अब एक चीज लर्निंग के बारे में क्या आती है, जो सबसे पहली फंडामेंटल चीज है वो क्या है लर्निंग के बारे में, that there should be a permanent change in behavior. Learning should be something that involves a permanent change of attitude. Learning is never temporary. लर्निंग कभी भी ये नहीं है कि आज आपने सीखा कल आप भूल गए. इस सेमेस्टर में आपने एग्जाम दे दिए, अगले सेमेस्टर तक आपको वो सब्जेक्ट याद नहीं है, that is not learning. It is not at all learning. Learning is something which you remember for a period of lifetime, जो आपको जिंदगी भर कहीं ना कहीं याद रह जाए. अब आप कहेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कैसे पॉसिबल है. ठीक है. दूसरी बात, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एजुकेशन और ट्रेनिंग. लर्निंग के अंदर कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, आपको एजुकेट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल आपको ट्रेनिंग दे सकता है किसी भी तरह की, एंड एट द सेम टाइम it is basically a result of any kind of practice. It is basically something which we gain out of experience. Learning कभी भी क्या होता है, हम एक पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि क्या है, permanent. It is not temporary. Plus यहाँ पर क्या होता है, through various ways and means, through education, through any kind of experience or something, we get to learn things. Fine. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. Learning must be reinforced, यानी कि you should be able to re-implement what you have learned. ऐसा कभी भी लर्निंग में नहीं होता कि आप जो है ना, आज आपने कुछ सीखा कल आप री-इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे. एग्जाम्पल की तरफ मैं अभी बढ़ूंगी, पहले टॉपिक जो है थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल इसका मीनिंग समझ लें. फाइन. उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, यानी कि रीइंफोर्समेंट तो है ही है, साथ में क्या है, बिहेवियर के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. Learning is something which should be shown in your attitude. It should be a part of your behavior. अगर कोई चीज सीखी है तो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, अगर नहीं सीखी तो वो रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं करेगी. Now giving you one example, क्या होता है, अगर मैं एग्जाम्पल पिकअप करूं एक नर्सरी की क्लास का या फिर एक केजी की क्लास का, तो नर्सरी केजी यूजुअली किंडरगार्टन के अंदर क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन अपने चाइल्डहुड के अंदर भी देखा होगा, या फिर हो सकता है कि कहीं आप जो है बाईपास करते हो, इधर उधर कहीं आप जो है वो ट्रैवल करते हैं तो बीच में कोई स्कूल पढ़ा अगर किंडरगार्टन, तो आपने देखा होगा दैट द टीचर इज वेरी एंथुसियास्टिक. दे थ्रू वेरियस postures, gestures, body movements, they jump and they are very bubbly, they are chirpy, and then through this chirpy attitude, through this happy-go-lucky attitude, they make the child learn something new. ठीक है. अगर क्या होता है, छोटे बच्चों के सामने कुछ फन और जो है वो फ्रॉलिक हो रहा होता है तो क्या होगा, they get entertained, they get really energetic, and as soon as they get energetic, वो चीज क्या होती है, वो अपने अंदर इंस्टिल करने लगते हैं, यानी कि जो राइम्स, जो पोएम्स उनको टीचर सिखाते हैं वो क्या होता है, दिमाग में बैठने लग जाती हैं. फाइन. What if I say, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Again, we remember these things from our childhood. ठीक है. Similarly, rhymes like I'm a little teapot. So what exactly is this? This is a part of learning. Again, the table of two. You remember the table of two. अब हो सकता है 19 का टेबल किसी को याद हो ना हो, लेकिन भाई 2 का टेबल तो याद होता है. तो 2 का टेबल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. कोई सोते सोते भी आपको उठाएगा और कहेगा भाई 2 का टेबल सुनाओ. ठीक है. पहली बार तो आप जो है वो इरिटेट होंगे, हो सकता है कि है ना आउट ऑफ इरिटेशन जो है ना सुना भी दें. ठीक है. फाइन, लो सुनो. तो क्या है, you are going to reinforce things as and when demanded. अगर मैं एग्जांपल लूँ ड्राइविंग का, ठीक है,
कार ड्राइविंग है, स्कूटी ड्राइविंग है या बाइक ड्राइविंग है, भाई एक बार अगर आपने ड्राइविंग सीख ली तो आप क्या करते हैं, उस चीज को रीइंफोर्स, यानी कि यू कीप ऑन ड्राइविंग. इफ यू डू नॉट रीइंफोर्स थिंग्स यू फॉरगेट देम. ठीक है, आप अगर कोई चीज चलाना सीख तो गए हैं, कोई व्हीकल चलाना सीख गए, लेकिन आप दोबारा नहीं चला रहे तो क्या होगा, यू विल एंड अप फॉरगेटिंग इट. ठीक है, तो वो चीज लर्निंग नहीं होगी. हाँ, अगर उस चीज को क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर ट्रेनिंग्स एंड ऑल, यू कीप ऑन रीइंफोर्सिंग इट, तो क्या होता है, वहां पे आपका परमानेंट चेंज ऑफ एटीट्यूड हो जाता है. यानी कि आपको पता है एक एक चीज, यू नो ईच एंड एवरी इंट्रिकेसी. तो इसको हम कहते हैं लर्निंग. Hope you have understood the meaning of learning, and now we are going to proceed further with theories of learning. Theories of learning can be subdivided into 4 main headings. Fine, 4 main theories हैं. Theory number 1, classical conditioning, given by Ivan Pavlov. Theory number 2, which is operant conditioning, given by B.F. Skinner. Theory number 3, known as cognitive processes, and theory number 4, which is social behavior. अब इन चारों theories को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. So let us start with the first theory, which is classical conditioning. अब सबसे पहले देखते हैं classical conditioning में हमने नोट क्या किया है. It is propounded by Ivan Pavlov. It deals with association of one event with another event, resulting in a desired behavior or learning. Pavlov conducted an experiment on dog to study the relationship between dog's salivation and ringing of bell. अब पहले तो मैं आपको बोर्ड के लेफ्ट पोर्शन समझाऊंगी, फिर मैं बाद में राइट पोर्शन की तरफ जाऊंगी. So now in this particular situation, let us first of all understand the experiment and then we are going to continue with theory. Now, Ivan Pavlov conducted an experiment on this particular dog. Now usually whenever a dog sees a piece of meat, it starts salivating. Fine. And at the same time, यहाँ पर क्या हुआ, Pavlov ने डॉग के एक तरह से बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी. किसके जरिए, एक स्टिमुलस के जरिए. ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ, जब भी एक डॉग किसी पीस ऑफ मीट को देखते हैं तो क्या होता है, दे सलाइवेट. तो यहाँ पे डॉग क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो पीस ऑफ मीट क्या है, एक अनकंडीशनल चीज. इट इज सिंपली एन अनकंडीशनल थिंग विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द एनिमल. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, पैवलोव ने क्या करा कि धीरे धीरे करके पीस ऑफ मीट उसको हटाया पिक्चर से और उसकी जगह बेल को इंट्रोड्यूस करा. मतलब इसका मतलब ये कि जब भी जो है वो क्या होता था, खाने का टाइम होता था, तो यूजुअली क्या होता था, इनिशियली पैवलोव क्या करते थे, डॉग के सामने खाना रख देते थे, यानी कि मीट का पीस रख देते थे. अब मीट का पीस रखना बंद करा, अब क्या करा, अब जो है वो बेल बजाना शुरू करा. ठीक है, व्हेनेवर इट यूज्ड टू बी मील टाइम, तो मील टाइम पे क्या होता था, वो जो है ना बेल रिंग करते थे और बेल रिंग करके ये देखते थे कि भाई डॉग का क्या कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है. इनिशियली डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये घंटी तो बजती है, लेकिन हाँ इसके साथ क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. नथिंग वाज अंडरस्टूड बाय दैट पर्टिकुलर एनिमल. लेकिन धीरे धीरे करके पैवलोव ने क्या करा, ट्रेन कर दिया डॉग को. अब डॉग ने क्या करना शुरू करा, ट्रेनिंग कैसे दी, ट्रेनिंग कुछ इस तरह से दी उन्होंने कि भाई जब भी डॉग पीस ऑफ मीट को देखे तब सलाइवेट ना करे, हाँ जब बेल को सुने तब सलाइवेट करे. और धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक एटीट्यूड डॉग ने अपने बिहेवियर में इंस्टिल कर लिया. यहाँ पर 4 कीवर्ड्स हैं, 4 कीवर्ड्स आर देयर. C stands for conditional, U stands for unconditional, S stands for stimulus, R stands for response. अब इन्हीं 4 कीवर्ड्स का यूसेज करते हुए हम इस पर्टिकुलर टेबल को समझने की कोशिश करते हैं. Now before conditioning, what exactly happened was that the piece of meat, it was an unconditional stimulus. यानी कि एक तरह से कोई मीट के पीस के अंदर कंडीशन थोड़ी ना लगी थी, खाना था, डॉग के सामने रख दिया और इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या था, इमीडिएट रिस्पॉन्स डॉग का ये था दैट इट यूज्ड टू सलाइवेट, यानी कि उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी. इट वॉज टोटली अनकंडीशनल. फाइन. अगली चीज आती है क्या, बेल. भाई बेल को सुनते ही इनिशियली डॉग ने क्या करा, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बेल क्या बन गई, न्यूट्रल स्टिमुलस. क्योंकि
बेल के रिंगिंग के साथ साथ डॉग को कुछ समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। अब ये हो गया हमारा बिफोर कंडीशनिंग का केस। कंडीशनिंग यानी कि हाउ आर यू गोइंग टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल। तो पैवलोव ने क्या करा कि यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस रखा। कंडीशनल स्टिमुलस रखने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या था, बेल, यानी कि उन्होंने कंडीशन ये रखी खाना मिलेगा तो सही, लेकिन घंटी बजते के साथ साथ, ठीक है। तो क्या होता था, इनिशियली मीट जो था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, लेकिन इसके साथ साथ एक और उन्होंने एक चीज जोड़ दी, कंडीशन लगा दी मीट के साथ साथ कि मीट तभी मिलेगी, खाना तभी मिलेगा जब ये बेल रिंग होगी, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, डॉग का रिस्पॉन्स अगेन अनकंडीशनल था, ठीक है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था हमारे डॉग का, सलाइवेशन, ठीक है। अगला आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि जब ट्रेनिंग दे दी, नाउ दैट द ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीटेड, क्या हुआ, नाउ whenever dog used to listen to this bell, it understood कि हाँ मुझे खाना मिलेगा। तो बेल के रिंगिंग के साथ कंडीशनल स्टिमुलस के साथ साथ क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमारा अनकंडीशन था, अब उसको क्या कर दिया पैवलोव ने, उस पे कंडीशन लगा दी, ठीक है ना। यानी कि अब जो है वो क्या होता है, मीट के पीस को देखकर डॉग सलाइवेट नहीं करता था, बल्कि डॉग सलाइवेट तब करता था जब उसे बेल सुनाई देती थी, कि भाई उसे एक इंडिकेशन मिल जाता था कि बेल के रिंगिंग के साथ साथ उसको खाना मिलेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा क्या, नाउ लेट्स कम डाउन टू द कंक्लूजन। इट डील्स विद एसोसिएशन ऑफ वन इवेंट with another desired event resulting in a desired behavior, यानी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्ट करा और दूसरे इवेंट के थ्रू आपने क्या करा, अपने हिसाब से डिजायर्ड जो है बिहेवियर यानी कि लर्निंग डिराइव करा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को, ठीक है। एक इवेंट यहाँ पर क्या था, एक इवेंट यहाँ पर मीट का था, ठीक है। This particular loaf of meat, this particular piece of meat was one event. इसको क्या करा, इसको रिप्लेस करके पैवलोव ने क्या करा, पैवलोव ने बेल को एक तरह से कहा कि भाई बेल जो है ना हमारा दूसरा इंडिकेटर है, मुझे खाने को रिप्लेस करना है किससे, बेल से। और अब क्या हुआ, अब डॉग के एटीट्यूड में क्या करा, चेंजेस कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवेशन जो था डॉग का वो क्या हो गया, वो एक तरह से उस पर कंडीशन लग गई। अब मैं इसको एसोसिएट करती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। कभी भी किसी कंपनी में जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो उन्हें डिजायर्ड तरीके से काम करवाने के लिए क्या होता है, यू हैव टू चेंज देयर माइंडसेट, यू हैव टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप वो कर देते हैं तो इंसान आपके लिए काम करेगा बेनिफिशियल वे में, लेकिन अगर आप वो चेंज नहीं कर पाते तो क्या होता है, इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट द इंडिविजुअल माइट नॉट वर्क एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, एज पर योर डिमांड्स और एज पर योर डिजायर्स। तो ये था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। आइए प्रोसीड करें ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज propounded by B.F. Skinner. It is based on premise that behavior is a function of its consequences. Behavior are repeated if consequences are favorable and not repeated if consequences are unfavorable. Powerful tool for managing people at workplace. Now, before making you understand what I have written on board, I'll first of all move ahead towards this experiment which was conducted by B.F. Skinner. Now, B.F. Skinner made a customized box for this particular rat. ठीक है, B.F. स्किनर ने एक कस्टम मेड बॉक्स बनाया, किसके लिए, एक चूहे के लिए। अब अगर आप अलग अलग बुक्स को देखें तो अलग अलग बुक्स में मल्टीपल और अगर आप जगह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं। डायग्रामेटिकली इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट एक हम जनरलाइज्ड यहाँ पर डायग्राम ले रहे हैं which is usually followed in most of the books. Fine. Now in this custom made box what did Skinner do? Skinner made a liver. Skinner ने एक liver बनाया इस custom made box के अंदर, और liver के साथ साथ क्या बनाया, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो है स्पेस बनाया बॉक्स के बाहर खाने का,
और बॉक्स के अंदर कुछ छोटा सा जो है ना क्या हुआ, कटोरी यानी कि बोल कोई छोटा सा रखा जिसके अंदर खाना जो है वो आ जाएगा। लेकिन खाना कैसे आएगा? अगर रैट चूहे ने इस लिवर को हिट करा, तभी हिट करने के बाद इमीडिएटली खाना क्या होगा, बोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो तो आपको पता होगा कि चूहे को कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर सेट जगह पे अगर रखते हैं हम किसी बॉक्स के अंदर, तो चूहा उसकी सराउंडिंग्स में घूमने लग जाता है। यानी कि एनिमल जो है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है उसके पूरे के पूरे जोन को, एरिया को। ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ने भी चूहे ने कुछ ऐसा करना शुरू करा। इट स्टार्टेड मूविंग थ्रू आउट द बॉक्स। और क्या हुआ, जब जो है वो उसे कुछ भूख लगी तो फिर जो है वो ये उसकी मूवमेंट थोड़ा और बढ़ गई। ठीक है। और एकदम से इत्तेफाकन, ठीक है, इट बाय मिस्टेक हिट दिस लिवर। ठीक है। और जैसे ही इस लिवर को हिट करा तो हिट करने के साथ साथ क्या हुआ, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पर, यहाँ पर फूड कंपार्टमेंट में। फूड कंपार्टमेंट से थोड़ा सा जो है वो क्या हुआ, खाना, थोड़ा सा चीज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर बॉक्स के अंदर। और जैसे ही चीज आया तो फटाफट क्या करा, रैट ने, माउस ने खा लिया उसे। ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे जब जो है वो क्या हुआ कि रैट को ये मालूम पड़ गया, पता चल गया कि भाई लिवर को हिट करने से बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ खाने का पीस आ जाएगा, कुछ जो है वो चीज का पीस आ जाएगा। तो क्या हुआ, इट लर्नड दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, इट लर्नड दिस पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न। फाइन। और अब जब भी क्या हुआ, चूहे को भूख लगती थी तो वो क्या करता था, और कहीं कुछ नहीं करता था, सिंपली जाकर लिवर पे हिट करता था, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि लिवर पे हिट करने से खाना एकदम कस्टमाइज बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था स्किनर का एक्सपेरिमेंट। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर थ्योरी, व्हाट इज इट propounding, व्हाट इज इट प्रोपगेटिंग। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिहेवियर आर रिपीटेड इफ कॉन्सिक्वेंसेस आर फेवरेबल। यानी कि बिहेवियर, चूहे का बिहेवियर कौन सा फेवरेबल था, उस लिवर को हिट करने वाला। ठीक है। तो जैसे ही हिट होता था तो उसको एक रिवॉर्ड मिल जाता था। रिवॉर्ड किस फॉर्म में, चीज के फॉर्म में। ठीक है। और अगर क्या होता था, बिहेवियर अगर जो है वो फेवरेबल नहीं था तो कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते थे, यानी कि खाना नहीं आता था। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें एक तरीका सिखाता है, क्या तरीका सिखाता है, ऑफ रिवॉर्डिंग एंड ऑफ पनिशिंग। ठीक है। रिवॉर्ड देने का और पनिशमेंट का तरीका सिखाता है। यानी कि इफ अ पर्सन इज गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, इफ अ पर्सन इज गिविंग यू द करेक्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस, यू शुड रिवॉर्ड दैट पर्टिकुलर फेलो। But if a particular person is not working as per your expectations, then you should punish them. तो ये है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं, which we have left out right now. Based on premise that behavior is a function of its consequences. यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, इफेक्टेड रहता है। हमें कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड मालूम है कि भाई अगर जो है वो क्या होगा, अगर हम सही जो है वो रिस्पॉन्सेस देंगे, सही जो है वो एक तरह से एटीट्यूड जो है वो शो करेंगे, बिहेवियर पैटर्न बढ़िया रहेगा, तो इसके क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे होंगे। ठीक है। Now giving you one practical example from the real life. Whenever a child gets good marks, their parents are going to reward them by various ways and means. Similarly, if a child is not performing well in their studies, what will happen? They are going to be many a times punished by the parents. तो ये क्या है, एक कह लीजिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट का तरीका हमने कहाँ से सीखा, we have learned this in OB with the help of the experiment which was conducted by B.F. Skinner. Okay, so now let us start off with theory number 3, which is cognitive learning. अब देखते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा है. It is thinking about perceived relationship between events and individuals' goals and expectations, ideas, thoughts, interpretations, etc. about himself and his environment. Cognitive learning is basically associated to mind. ठीक है. कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब क्या है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने थॉट्स को एक्सरसाइज करते हैं.
ठीक है, चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे जो है वो चीज़ों को लेकर प्रोसीड करते हैं। हमारा माइंडसेट, हमारी जजमेंट्स, हमारे थॉट्स और ओपिनियंस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या होता है, बदल जाते हैं। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म्स। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि you are using your mind, you are using your brain, and with the help of this particular thing that you have with you, you are changing your attitude, you are changing your behavior pattern. This refers to cognitive learning. बस इतना ही था, इससे आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, social learning is learning achieved through reciprocal interactions between people, behavior and their environment, is a behavioral theory and goes beyond classical and operant conditioning. अब ये तो क्लियरली डिफाइंड है कि क्या है, ये बिहेवियरल थ्योरी है जो कि क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के आगे जाती है। ठीक है, दिस थ्योरी इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ टू दोज पर्टिकुलर टू थ्योरीज, बट इट इज गोइंग वे बियॉन्ड दैट। फाइन, अब इसमें क्या एक मेन बात आती है, दैट लर्निंग इज अचीव थ्रू रेसिप्रोकल इंटरैक्शंस। ठीक है, यानी कि टू एंड फ्रो इंटरैक्शन। अब कभी भी, जैसे मैं आपको समझा रही थी कि भाई आप कार ड्राइव करना सीखते हैं, ठीक है, so while driving car you are going to discuss things with your trainer. अगर आपको कहीं कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, you are time and again going to interact with him. ठीक है, और कुछ ऐसी भी बातें होती है many a times, अगर वो ट्रेनर आपको ना सिखाए तो क्या होगा, आपको ऑब्जर्वेशन के जरिए वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग हिम और हर अगेन एंड अगेन, और वो बार बार क्वेश्चनिंग के जरिए क्या होता है, टू एंड फ्रो इंटरेक्शन जब हमारे हो रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन के जरिए हम क्या करते हैं, वी एंड अप लर्निंग थिंग्स। ठीक है, वी एंड अप लर्निंग थिंग्स विच वी वर नॉट अवेयर ऑफ प्रीवियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस बेसिकली फ्रेम्स आर एटीट्यूड, दिस बेसिकली फ्रेम्स आर बिहेवियर। तो ये थी हमारी 4 थ्योरीज। अब अगर ये आपको समझ आ गया तो आइए प्रोसीड करें अगली चीज के साथ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद strategies of reinforcement. First point in strategies of reinforcement is positive reinforcement. Whenever a particular individual shows the desired kind of behavior or shows the right kind of results, fine, so they should be rewarded. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये कहता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर आपके हिसाब से काम कर रहा है, इफ दे आर वर्किंग एज पर योर विल और एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू शुड रिवॉर्ड देम एट द एंड ऑफ द डे। तो आइए शुरू करें पॉइंट नंबर 2 के साथ, जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बिहेवियर्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है। फाइन, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि व्हाट इफ एन इंडिविजुअल इज ड्राइविंग प्रॉपरली। क्यों वो ड्राइव प्रॉपरली कर रहा है, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ चलान्स, they want to avoid any kind of penalties which are being imposed by the traffic police. ठीक है, now point number 3, extinction refers to non-reinforcement. Now giving you one such practical example for extinction. What if there is an employee in your organization who time and again creates a lot of problems? What will happen at the end of the day? It is possible that the whole staff may ignore them, may avoid that particular fellow for the time being so that they can come back to normal. ठीक है, दैट रेफर्स टू एक्सटिंक्शन, यानी कि एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई यू शुड इग्नोर सच काइंड ऑफ बिहेवियर इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ आ ग्रुप और आ सर्कल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? It means that an individual whosoever is not showing you the right kind of results, whosoever is showing you the wrong kind of results, you should time and again keep a check on them by punishing them. Not physically, but it is just that you have to serve them with notices and all, so that they are showing you the right kind of behavior, they are showing you the correct kind of attitude in order to have a smooth functioning in the organization. तो ये था हमारा टॉपिक लर्निंग का। अब अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया है तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ ये वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू।